Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's Daily News Analysis. आज है 2nd October 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move ahead, let's see the comment section. जो पिछले वीडियो में मैंने questions पूछे हैं उसके भी अभी आंसर्स मैं बताऊंगी. And again, very well answered. Most of you have answered correctly. Purvai, Vidhi, Aditi, Ramjash, खुशी, स्टार, हरलीन, किस्मत, प्रणव, वेरी गुड. ऐसे ही कमेंट करते रहें ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जीके के फैक्ट्स याद नहीं होते, राइट? बार बार करने से, रिविजन करने से ये बिल्कुल याद होंगे एंड दिस इज अ वे ऑफ अस हेल्पिंग यू टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. सो प्लीज कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. सो नाउ लेट्स सी द आंसर्स ऑफ माई प्रीवियस वीडियो. तो यहाँ पे मैंने पूछा था विद रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन का जो टर्म है, टेन्योर होता है, दैट इज 6 years या 65 years. 6 years का जो टर्म है या कि 65 एज. सो विच एवर कम्स अर्लियर इज द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन, the Supreme Court judges, as also of the CAG, that is the Comptroller and Auditor General. The next question was coldest planet कौन सा है? The coldest planet is Uranus. ठीक है, ना कि Neptune. यहाँ पे coldest planet है Uranus. And the hottest planet we have seen is Venus. The next is Mars Orbiter Mission, right? कौन से launch vehicle में release किया था? That is PSLV C-25. ये मास ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान जो 2013 का था. So some facts that were asked for you. Now let us see also some questions that have been asked by you. So firstly, ma'am, can a scientific paper be retracted which has aided in new discoveries in publications but in later stage was pointed out flawed? तो हमने previous class में retractions देखा था. What are retractions? Retractions are those that जो publications होते हैं, scientists जो paper लिखते हैं उनका निकलना, that is removed from any academic literature, that is called retraction. हम उसको क्यों निकाल रहे हैं? Because they are flawed, because ये either they can be plagiarized या कुछ honest mistake हो सकता है, right? So in that case हम ये पेपर को निकालते हैं to keep the sanctity of our scientific innovations. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर पहले सही हुआ, okay, before they did not realize कि वो गलत है, after that, after some time they understand that is wrong, can they be removed? The answer is yes, because it is flawed, right? So अगर वही गलत होता है, later on पता चलता है कि गलत है, they can be retracted. So yes, the answer is correct. The next one, US antitrust ruling on Google. So Ramjash has asked this and we have also discussed this in 28 September के class में. कुलदीप सर ने ये इसका discussion हो गया है, so I'm not going to rediscuss it. The next question is delimitation order. Is it immune from judicial review or not? तो यहाँ पे the answer is yes. डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है एंड दिस वाज बाय अ केस कॉल्ड किशोर चंद्र छगनलाल. जस्ट राइट इट वंस अगेन. छगनलाल राठौड़ केस. ठीक है, तो इस केस ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डिलिमिटेशन का ऑर्डर होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो बॉर्डर्स देते हैं, राइट? सो अगर इट इज वायलेटिंग ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देन इट कैन बी रिव्यूड, राइट? इट कैन बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो यस, यहाँ पे इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल ऑर्डर. यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, right? And the other answers that are done by you, so we have already answered this. So thank you so much for answering the questions and we'll look after more questions today. But before we understand, आज है 2nd October, आज का दिन है गांधी जयंती, right? So let's understand about this great leader, great freedom fighter. And another leader also celebrates his birthday on 2nd October. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. So firstly, we'll understand about Mohandas Karamchand Gandhi. Okay, some facts that you have to remember for your exam.
सो यहाँ पे इनके पेरेंट्स के बारे में, इनके पेरेंट्स के नाम, यानी फादर करमचंद गांधी, मदर इज पुतलीबाई गांधी, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर द इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही हैज डन फॉर आवर कंट्री। इनको टाइटल भी दिया है महात्मा गांधी। ना ये टाइटल महात्मा ये किसने दिया है? ये दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्दर अगर हम कहें वेयर वाज ही बॉर्न, ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में, एंड ही ऑल्सो स्टडीड लॉ, राइट? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की है। ही ऑल्सो वॉज इन अफ्रीका, ही वर्क देयर एंड देन ही केम टू इंडिया, राइट? सो दिस वॉज हिज जर्नी इन 1915 में जब वो इंडिया आए। ही टुक आफ्टर मेनी सच मूवमेंट्स, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, जैसे कि चंपारण मूवमेंट है, या अगर हम केदा सत्याग्रह की बात करें, या अगर हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें, दिस वाज हिज स्टार्टिंग मूवमेंट्स जो गांधी जी ने सपोर्ट किया, गांधी जी ने वहां पे मदद की। He also brought about many other movements like non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement, and all of these are studied in our static portion जब हम history करते हैं, right? So these are the contributions that we can see done by Gandhi ji. However, he was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse in New Delhi. ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस के, एक ही सेशन में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो पूछ सकते हैं कौन सा सेशन है ये? दैट इज बेलगांव सेशन 1924। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट राइटिंग्स डन बाय गांधी इज हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये दो राइटिंग्स आपको याद रखनी है जो है गांधी जी ने। ईयर ही हैज नेवर वन अ नोबेल प्राइज, 5 बार ये नॉमिनेट हो चुके हैं, बट ही इज नॉट वन इट। कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट इंडियन और नॉन यूरोपियन to win a Nobel Prize? Okay, the first non-European to win a Nobel Prize. आप उनके नाम comment section में लिख लीजिए। Next is International Day of Non-Violence is now taken as by UN, celebrate किया जाता है 2 अक्टूबर को। So उनके ही जन्मदिन पे we celebrate International Day of Non-Violence because इनके principles वही रहे हैं, अहिंसा, सत्याग्रह, right? And that is why we celebrate Gandhi Jayanti on 2 October for the achievements that he has done. And the next person that also has been a great freedom fighter and a founding fathers of our nation is Lal Bahadur Shastri. तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपना बर्थडे शेयर करते हैं गांधी जी के साथ 2 अक्टूबर को, एंड दैट इज इन 1904 मुगल सराय जो है उत्तर प्रदेश में। He has been the second prime minister of India after Jawaharlal Nehru, right? तो यहाँ पे उनका टर्म was very short, 1964 से 1966, and he died in Tashkent. ठीक है, ताशकेंत में इनकी हत्या हो गई थी 10th January 1966. He had gone there to sign an agreement, Tashkent Agreement, because इस बैकग्राउंड में क्या हुआ था? We understand 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर था, तो यहाँ पे टू साइन एन अग्रीमेंट, राइट? ही हैड गॉन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री, एंड पाकिस्तान के साइड से वी हैड अयूब खान. So then 1966 में a day after, okay, that means a day after the signing, okay, mysterious death है, some say heart attack, some say poisoning, but remember the date, 10 January को ही मर गए थे. Now the next aspect is with regard to the slogan that he has given. He has given the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. ये क्या है slogan? This is talking about hailing the soldiers as well as hailing the farmers, right? हमारा अगर development होना है, it is not just with regard to security but also with regard to agriculture. These were the principles. This was the slogan जो इसी background में 1965 में हमारे second prime minister लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. He is also the first person to be posthumously awarded the Bharat Ratna in 1966. Posthumously मतलब मरने के बाद he was given the Bharat Ratna. Now can you tell me इस साल भारत रत्ना को किन किन लोगों को मिला है? किन लोगों को भारत रत्न ये अवार्ड दिया है इस साल? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Now let's move to the next article.
All right, now this is with regard to the recent you can say affairs, events that have happened in Iran, in Israel. So यहाँ पे जो ईरान है, इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है, मिसाइल के अटैक्स किए हैं. ऐसा कहा गया है कि around 180 such missiles were fired from Iran towards Israel in the regions like Jordan River Valley and Jerusalem. ईरान ने ये भी कहा है कि अगर आपने रिटेलिएट किया इजराइल को कहा है कि अगर आपने रिटेलिएट किया तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी, इट्स गोइंग टू गेट वर्स. ना अगर हम देखते हैं ईरान और इजराइल के जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं, दे आर नॉट बीन वेरी गुड. एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? नाउ ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू इट, 1979 में देयर वाज इरानियन रेवोल्यूशन. ओके, इरानियन रेवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ? द 1979 के प्रायर द रिलेशंस वर गुड. ईरान वाज एन एलाई ऑफ इजराइल. बट जब इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, इट टर्न्ड इनटू एन इस्लामिक रिपब्लिक नेशन. Here we see the relations got bitter. Okay, they were against Israel. This also has to do some with regard to some religious angle to it. Iran is a Shia Islamic state, whereas Israel is a Jewish state. तो religions भी अलग हैं. दोनों का एक important है कि दोनों को dominate करना है Middle East and West Asia को. So that is also another problem where they want to handle and dominate this region. We also see nuclear, you can say differences between the two. Israel doesn't want Iran to increase its nuclear capabilities, and we know Iran भी यहाँ पे proxy wars के through. What is proxy wars? यानी direct war नहीं करता, पर किसी और ग्रुप्स को सपोर्ट करता है ताकि इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो, इजराइल अनस्टेबल हो. राइट, सो दीज आर कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर्स. सो ईरान ने कौन से ग्रुपिंग्स को सपोर्ट किया है? जैसे कि हमास. राइट, सो पैलेस्टीनियन ग्राउंड्स में हमास, इस मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान ने. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हेजबुल्ला. हेजबुल्ला कहां पे है लोकेटेड? हेजबुल्ला ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, इट इज इन लेबनान. ठीक है, सो यहां पे बिकॉज वी सॉ इजराइल वाज अटैकिंग द हेजबुल्ला इन लेबनान, ईरान ने ये यहाँ पे फायर किया है. इट इज सेड कि हमने रिटेलिएट किया बिकॉज यू हैव बीन टारगेटिंग हेजबुल्ला. उनके लीडर को भी उन्होंने मार दिया है. सो दैट इज द रीजन ईरान इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग. Apart from that, many militant groups have lauded ये जो इवेंट ईरान ने किया है, इन्होंने इनको सपोर्ट किया है. एंड ऑन द अदर हैंड इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए. सो यहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन सपोर्ट इजराइल इन दिस केस, बिकॉज वी नो दैट यूएस और ईरान के भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द बैकग्राउंड, एंड करंटली जो अभी हो रहा है उसके बारे में क्विक हमने समझा है. Let's now proceed to the next article, and the next article is with regard to 10 years of Swachh Bharat Mission. तो यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन. यानी कि स्वच्छ भारत मिशन, when was it launched? It was launched in 2014, and to be precise, what date? 2nd October. ओके, 2014 में ये लॉन्च हुआ था ना. 2014 इनका टारगेट था कि 5 years, यानी कि 5 years यानी कि 2019, राइट? 5 years यानी कि 2019. एंड वाई 2019 स्पेसिफिकली? वाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे इट वॉज द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? ऑफ गांधी जी. तो अभी इनके 155th एनिवर्सरी है, गांधी जी का 155th एनिवर्सरी है. सो वी वांटेड टू कंप्लीट एंड वी वांटेड टू गेट सम टारगेट्स अचीव्ड on 2019, which is the 150th birth anniversary of गांधी जी. इसीलिए हमने ये एक लॉन्च किया था. So let's understand about the positives about this स्वच्छ भारत मिशन. उसके बारे में पूरे अच्छे से जान लेते हैं. कुछ फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आते हैं. So स्वच्छ भारत मिशन जो है,
क्लीन इंडिया कैंपेन 2014 यानी 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। What was the major aim of this? The major aim was this that हमको ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया अचीव करना है, ये हमारा एम था। नाउ व्हाट इज डेफिकेशन, ये भी बताया गया। ODF जो है ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका मतलब है द डेफिनेशन इज गिवन दैट नो वन इन अ सिटी या वार्ड, कोई भी पाया नहीं जाएगा डेफिकेटिंग इन द ओपन एट एनी टाइम ऑफ द डे। If you don't find anyone defecating in the open in any time of the day, that place is called as ODF. उसको ये status दिया जाएगा। So this status, what was the target? 2019 was the target कि we have to make India ODF. तो इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया था? गवर्नमेंट started giving assistance with regard to household toilets, right? Household toilets. Apart from that, community toilets, public toilets. So if you've seen, अगर you've seen places like Delhi and all of those, आपको यहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान में, and they have made the toilets very clean, very accessible for the people, right? Apart from that, यहाँ पे sewage management के लिए भी सुविधाएं हुई है। सो अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, स्पेशली इन स्कूल्स, इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सिस्टम्स होंगे, सीवेज सिस्टम्स होंगे, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये भी ना हो। So these are the various initiatives under the स्वच्छ भारत मिशन, as well as यहाँ पे अवेयरनेस का भी आप ऐड कर सकते हैं। सो अवेयरनेस करना, बिहेवियरल चेंज देना, क्यों ये गलत है, डेफिकेशन क्यों गलत है बाहर करना, ये सब भी बताया जाता है थ्रू प्रॉपर बिहेवियरल चेंजेस कैंपेन्स चला के। सो ये जो था इट वाज मेजर गोल, SDG गोल नंबर 6.2। ये गोल में बताया है कि एक्सेस एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एक्सेस फॉर ऑल, स्पेशली फॉर वुमेन एंड फॉर गर्ल्स। तो ताकि इक्वल हमको एक्सेस मिले टू द टॉयलेट्स, ओके, ताकि उनको बाहर करना ऐसे सुविधाएं ना ऐसा होना चाहिए, ताकि दे कैन एक्सेस बेटर दीज टॉयलेट्स एंड दीज वॉशरूम्स। ये मिशन के 2 पार्ट्स हैं। कौन से 2 पार्ट्स? द फर्स्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड द सेकेंड वन इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अभी ग्रामीण जो है इट इज ओवरलुक्ड, इट्स मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड मिनिस्ट्री जो अर्बन का कंपोनेंट है इट इज लुक्ड आफ्टर बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो ये 2 आपको मिनिस्ट्रीज याद रखनी है हु इज लुकिंग आफ्टर दिस मिशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक कोष, यानी कि कोष का मतलब क्या है? फंड। Okay, so a Swachh Bharat Kosh was also created in 2014, and this fund is mainly looked after by whom, or who is facilitating this? It is by corporate social responsibilities, philanthropic contributions, जैसे donations के through हम एक fund बनाएंगे और ये fund use किया जाएगा for Clean India campaign, for स्वच्छ भारत मिशन, राइट। सो यहाँ पे जो भी पैसे हम जमा करेंगे थ्रू डोनेशन, थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज डोनेट करेंगे, वही पैसा हम यूज करेंगे मेनली टॉयलेट्स बनाने के लिए, स्कूल्स में प्रॉपर सुविधाएं देने के लिए, बच्चों को वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में टॉयलेट्स देने के लिए। सो ऑल ऑफ दिस मेनली विल बी यूज बाय क्रिएटिंग दिस फंड स्वच्छ भारत कोश। There was also another component, यानी कि 2019 के बाद जब हमने मिशन टारगेट अचीव किया था, we soon also decided to take it one step higher. तो ये है स्वच्छ भारत मिशन 2.0. This was launched in the year 2021. और यहाँ पे एम था नॉट जस्ट डेफिकेशन फ्री बट गार्बेज फ्री सिटीज। ठीक है, तो गंदगी को हम कम करें। इफ यू टॉक अबाउट pollution in India is called as in terms of our capital, that is Delhi. It is the world's most polluted capital of the world. Although हमारा रैंक जो है 3rd में है, however pollution के मामले में, गंदगी के मामले में, yes we are kind of higher in ranks. So यहाँ पे हमारा जो एम था it was mainly to reduce the garbage free cities, reduce the plastic waste, grey water management, जो sewage system है ये अच्छे से maintain करने के लिए हमने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 रिलीज किया था 2021 में। तो यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट आप देख पाओगे
सो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, 2019 इसका टारगेट था। 2014 में हमने स्वच्छ भारत कोष भी लॉन्च किया था डोनेशंस के थ्रू। देन दिस 2015 में वी स्टार्टेड अमरूत। अमरूत वाज विद रिगार्ड टू इंक्रीजिंग सिविल अमेनिटीज इन अर्बन एरियाज, सिटीज में यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। सो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रॉपर सुविधाएं देने के लिए इन द अर्बन सिटीज, स्पेशली इन स्लम्स सच एरियाज। 2019 में हमने अचीव किया था 100% ODF स्टेटस एंड 2021 में हमने लॉन्च किया था 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 with regard to garbage free cities. Let's now proceed to the next article. Now the next article is with regard to GI tag. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इंडिया में बहुत सारे GI टैग्स है, लेकिन GI टैग्स क्या है इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी सम न्यू टैग्स that have been granted, so new products that have been granted the GI tags. So your GI tag क्या होता है? Now GI tag is the one that is a product. It could be either a foodstuff या कुछ agricultural product हो सकता है, ये एक handicraft हो सकता है, it could be wines, right? So these are the categories जिसको GI tag मिल सकता है। अभी इसको GI टैग क्यों मिल रहा है? GI टैग इसके लिए मिल रहा है बिकॉज ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज किसी गांव से ये एसोसिएटेड है, उस रीजन की वजह से उसको एक GI टैग मिलता है। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव, अगर कोई प्रोडक्ट को, जैसे मान लो कि ये है एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को GI टैग मिल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्टली जो कंज्यूमर्स होंगे उनको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज वो उस रीजन से बिलोंग करता है, और उस जगह के जो मैन्युफैक्चरर्स है जो ये उगाते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज अगेन देयर प्रोडक्ट्स विल बी पॉपुलर, राइट? उनको बेटर इनकम सोर्स मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग इट अ GI टैग। Only a product of that specific region can be associated, can be given the GI tag. तो अगर हम applicability की बात करें, what are the products that can get a GI tag? जैसे कि agriculture, कोई crops को मिला है, foodstuffs, wine, spirit drinks, handicrafts as well as कोई industrial products, सिर्फ इसी चीजों को मिलते हैं the GI tag, right? Because they originate from that specific region. So यहाँ पे why is it associated with that specific region? Why not some other region can also get it? That is because उस जगह से वो क्योंकि आया है, वहाँ के प्रॉपर्टीज उसमें मिल जुल जाते हैं। जैसे कि बिकॉज द क्रॉप इज ग्रोइंग इन दैट सॉइल, उस सॉइल के प्रॉपर्टीज होंगे, उस सॉइल का पानी कुछ अलग होगा, है ना, उसका वेदर कुछ अलग होगा, इसीलिए इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो किसी और रीजन में पाए नहीं जाएंगे। दैट इज वाई यू गिव ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन दैट प्रोडक्ट, okay, that tag. And who gives this tag? The tag is mainly looked after the nodal agencies, Department for Promotion of Industrial and Internal Trade. Okay, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. And ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? Ministry of Commerce and Industry. Now, if you talk about ये tag कितने सालों के लिए valid होगा? This will be for 10 years. And it is granted by which organization? This is the GI registry, that is Geographical Indication Registry, चेन्नई में है। तो 600 से ज्यादा GI tags हैं इंडिया में, so it's not possible for us to remember all of them, right? However, we are going to see some new tags, recent tags, because this can come in the exam with regard to recent tags. So that is something that we are going to have a quick look. अपार्ट फ्रॉम दैट GI टैग को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? वो है GI एक्ट ऑफ 1999। तो 1999 में ये एनैक्ट हुआ था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। So one question to you is, which state in India has maximum GI tags? तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा GI टैग्स मिले हैं। लेट्स नाउ सी द करंट जो 8 प्रोडक्ट्स को मिले हैं आसाम के रीजन में, ये देखते हैं कौन से हैं ये। ओके, सो विल जस्ट सी द नेम्स ऑफ इट, सो जस्ट अ क्विक रीड थ्रू, तो इसीलिए मैंने कंप्रेस करके एक ही स्लाइड में दिया है। फर्स्टली राइस बियर, सो जो बियर बनता है राइस से, तो यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं। नाम क्या है? बोडो जो ग्वान, माइब्रा जो बिदवी एंड बोडो जो गिशी।
right? I hope I'm pronouncing this correctly. So these are the rice beers that have got the GI tag because they originate in that. जैसे मैंने कहा, wines and spirits are also part of GI tag. So remember, they can ask you what are the products that can get GI tag. So these are some products. Apart from that, food products को भी मिल सकते हैं. जैसे कि एक डिश है fermented fish से बना है, that is Bodo Nampham, then Bodo Onla, Bodo Guaqua and Narzi. सो ये डिशेस है, कुछ चीजें हैं जो उस जगह में पाए जाते हैं, बनाए जाती हैं, तो उनको भी जीआई टैग्स मिला है. एंड फाइनली द 8th जीआई टैग इज विद रिगार्ड टू अ ट्रेडिशनल क्लॉथ, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट को भी मिल सकता है, एंड दैट इज बोडो अरोनाई. सो दीज आर द 8 प्रोडक्ट्स. एंड किस रीजन से मिला है ये? आसाम. Alright, so these are the important products that have received. Let's proceed to the next article. So next article है, ये नया नहीं है, हमने कुछ ही दिन पहले किया था with regard to the Venus orbiter mission. Okay, Venus orbiter mission, जिसको एक दूसरा नाम है शुक्रयान. तो अभी ये क्यों आया है वापस? Because here we have planned to launch it. कुछ और डिटेल्स आए हैं, तो और भी डिटेल्स समझते हैं जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुए हैं, राइट? सो वील सी सम न्यू एडिशंस. जो अगर आपने वीनस मिशन पहले लिखा है, सो यू कैन ऐड इट देयर ओनली. तो मैंने आई थिंक लास्ट वीक में ही किया था ये. सो अगर आपने वो लिखा है आपके नोट्स में, ट्राई टू कीप इट ऑल इन वन प्लेस. सो यू जस्ट डू व्हाटएवर न्यू एडिशंस, न्यू फैक्ट्स दैट कम इन दिस क्लास. सो शुक्रयान नेम है मिशन का. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द वीनस ऑर्बिटर मिशन. ओके, सो ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, यहाँ पे द फैक्ट्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट डज इट मीन. ये इसका लॉन्च डेट हमने देखा था मार्च 2028 में. यहाँ पे डेट भी दिया है, मार्च 29 को ये शेड्यूल किया है, मार्च 29, 2028. ये जो मिशन होगा कितने दिनों का होगा अगर पूछेंगे तो याद रख लेना, 112 डेज का होगा. यानी 112 डेज होने के बाद ये रिटर्न करेगा, अराइव करेगा जुलाई 19, 2028. ओके, सो दिस इज द लॉन्च डेट एंड द अराइविंग डेट. नेक्स्ट इज कॉस्ट क्या है पूरे मिशन का? इट इज 1236 crores and the launch vehicle here is mentioned as launch vehicle Mark 3 LVM3. So this is something that you have to remember. कितने पेलोड्स होंगे? यानी कि पेलोड्स यानी कि जो सेंसर्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस यूज होते हैं किसी स्पेस मिशन में. तो यहाँ पे 19 मिशंस होंगे. 16 होंगे पेलोड्स दैट विल बी इंडियन ओनली, कंप्लीटली इंडियन, whereas 2 will be collaborating with इंटरनेशनल. सो इंडिया और इंटरनेशनल कुछ पेलोड्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से 2 बनेंगे, और एक कंप्लीटली इंटरनेशनल एक पेलोड होगा. Now what is the major aim of this mission? The major aim is ताकि हम अंडरस्टैंड करें वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो सरफेस है, राइट? ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड. जैसे हमने मार्स के लिए किया था, राइट, थ्रू द मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन. सिमिलरली वीनस के एटमॉस्फेयर को हम जानेंगे, बिकॉज वी नो वीनस इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विन, अर्थ्स ट्विन. और क्यों ट्विन कहते हैं? बिकॉज ऑफ the similarities that we see in the size of the two planets. जो size है, जो mass है, because it is similar to Earth, इसको कहते हैं Earth का twin. Okay, जुड़वा भाई. So that is what is the Venus mission, and we will see more such developments that will come in the coming times. The next article is with regard to नीति आयोग. Okay, तो यहाँ पे एक छोटा आर्टिकल दिया गया है, तो क्विकली जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं. तो नीति आयोग ने एक एक्सपर्ट पैनल को गठित किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, एंड द एक्सपर्ट पैनल इज बेसिकली फॉर व्हाट? द एक्सपर्ट पैनल इज टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस विद रिगार्ड टू पैंडेमिक. पैंडेमिक जैसे हमको सबने एक्सपीरियंस किया है, कोविड-19, राइट? सो इट इज नॉट कि ये लास्ट पैंडेमिक है, इसके बाद कोई पैंडेमिक नहीं होगा. क्या हम ये अश्योरिटी से कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं. बिकॉज अभी जो सिस्टम है, अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी जो भी हम देखते हैं इवेंट्स हो रहे हैं, वी आर मोर ससेप्टेबल टू मोर पैंडेमिक्स इन द फ्यूचर. इसीलिए हम कहते हैं कि अभी से हम प्रिपेयर्ड हो.
तो नीति आयोग ने 2023 में फॉर्म किया था एक एक्सपर्ट ग्रुप टू गिव रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड टू हमारे जो लर्निंग्स हुए हैं पैंडेमिक कोविड को केटर करने में, एज वेल एज जो भी गैप्स है। ओके, अगर कोई फ्यूचर पैंडेमिक आता है, सो व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी आवर वे ऑफ वर्किंग, right? So all of this is what is given, or this is mainly done by the expert group. So here इन्होंने अभी रिकमेंडेशन, तो ये 2023 में यहाँ पे ये बनाया गया था, and now we have given some recommendations. So we're going to see what they have been giving. पहले उन्होंने कहा है we should have a new act called as Public Health Emergency Management Act, FEMA. ओके, ये जो हमारा फाइनेंशियल वाला फेमा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ वाला फेमा है। तो इन्होंने कहा है कि एक नया एक्ट होना चाहिए, बिकॉज दूसरे जो एक्ट्स हमारे थे ये आउटडेटेड हो गए हैं। सो व्हाट वर द अदर एक्ट्स दैट वर देयर, जैसे कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, ये 1897, ये कॉलोनियल एक्ट है। तो उस टाइम पे जैसे प्लेग्स होते थे, राइट, उसको टारगेट करने के लिए वी आर द एपिडेमिक डिजीजेस। And we also have the National Disaster Management Act. But they are saying कि ये जो एक्ट है, they are not very equipped to mainly target पैंडेमिक्स। पैंडेमिक के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाना चाहिए टू गवर्न द कंट्री इन दिस रिगार्ड। फर्दर ये कहता है कि वी शुड हैव an empowered panel of secretariats, and this should be led by the cabinet secretary. एंड अगर कोई फ्यूचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज होती है, राइट, कैसे हमको मॉनिटर करना है, कैसे हमको प्रिपेयर करना है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू एक दूसरा एक पैनल बनना चाहिए विद रिगार्ड टू सेक्रेटरीज, विद रिगार्ड टू रिसर्च, फाइनेंस, ये सब ये गाइड करेंगे कितना पैसा देना चाहिए। ऑल दिस विल बी टोल्ड बाय देम। देन वी शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर सर्वेलियंस, राइट। वी हैव सीन कि रिसेंटली बहुत सारी डिजीजेस आए हैं, द एमपॉक्स, राइट, वी हैव नीपा, वी हैव चंदीपुरा, हंटा वायरस। तो ये जो एपिडेमिक स्टार्ट होते हैं, दे कैन हैव वेरिएंट्स हो सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं, एंड दे कैन स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। तो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक नेटवर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए, ताकि वी कैन एक्ट इन अ फास्ट पेस्ड मैनर। Next is proper network for early warning. So this is very similar to surveillance. Monitoring करना चाहिए throughout the country as well as to give information, to pass on information, forecasting अगर होना चाहिए तो ये भी हम, अगर आगे के कोई early warning systems हैं to understand कितनी तेजी से कोई disease बढ़ रहा है, so proper systems should be placed in this manner, as well as एक independent drug regulator। जैसे कि अभी हमारा major drug regulator है CDSCO. What is CDSCO? That is Central Drug Standard Control Authority, right? Central Drug Standard Control Organization. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट गिव्स अबाउट कि विच डिजीजेस आर ओके फॉर इंपोर्टिंग, फॉर एक्सपोर्टिंग, लाइसेंस देना, ट्रायल्स करना, तो ये इसका काम है। Now this is working under the government. So now they are saying कि हमारा जो CDSO है, this should be independent. It should get autonomy. ये किसी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन दिया है इसी एक्सपर्ट पैनल ने। So this is with regard to the report that was given by Niti Aayog. And for you, a question to you is, can you write who is the chairperson, vice chairperson, and also the CEO of Niti Aayog? तो ये आप मुझे बताएंगे in the comment section। नीति आयोग से you have to answer chairperson, vice chairperson and the CEO of Niti Aayog. Let's see the next article of the day. All right, now this is with regard to जो हिंदू टेम्पल्स हैं, राइट, ये अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके, राइट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन सुना है विद रिगार्ड टू कि शुड वी रिमूव द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन टेम्पल्स। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस? ये कल ही के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है विद रिगार्ड टू द अडल्ट्रेशन ऑफ घी। जो घी यूज किया था उसका अडल्ट्रेशन हुआ था इन द लॉर्ड वेंकटेश्वर लड्डू प्रसादम, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली ही हम देखते हैं ये आर्टिकल कैसे ये इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी कवर कर दूंगी। लेट्स सी फर्स्टली सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स।
हाउ आर रिलीजियस प्लेसेस मैनेज्ड इन इंडिया? तो रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि द मॉस्क्स दैट वी टॉक अबाउट, चर्चेस वी टॉक अबाउट, टेम्पल्स वी टॉक अबाउट, हाउ आर दे लुक्ड आफ्टर और मैनेज्ड इन इंडिया? तो हम मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करें जैसे मॉस्क्स एंड चर्च, यहाँ पे दे आर मैनेज बाय द कम्युनिटी रन बोर्ड्स, ट्रस्ट मैनेज करती है. बट इफ यू टॉक अबाउट द हिंदू, द सिख, द जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स, दे आर ऑफन under the government control. And how does the government control of this? It is because of Article 25 Clause 2. तो Article 25 Clause 2 ये एक fundamental right है और इस right के through government has got some powers. तो government can run or regulate economic, finance, secular activities associated with religious practices और इसी के through government control करती है these places. Now, why is government controlling? Because earlier we've seen that these temples become a source of wealth. ये mismanagement होता है, maladministration होता है. तो इसी के कारण government looks after the administration of these places, right? And if you talk about, this is not new. अलग-अलग states में भी यहाँ पे हम देखते हैं. For example, तमिलनाडु में हम देखते हैं the Hindu Religious and Charitable Endowments, ये department है, ये manage करता है temples in तमिलनाडु. सिमिलरली आंध्र प्रदेश में क्या है, यहाँ पे वी हैव द तिरुमला, तिरुपति देवस्थानम एंड तिरुपति टेम्पल्स, राइट? सो दे आर मेनली लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट. एंड फाइनली जम्मू कश्मीर में भी एक एक्ट है 1988 का, दैट इज मैनेजिंग वैष्णो देवी श्राइन इन कटरा, जम्मू. सो दीज आर एग्जांपल्स जहां पे स्टेट्स मैनेज कर रहे हैं द होली प्लेसेस, राइट, द टेम्पल्स. एंड दिस इज मेनली followed even during colonial times. तो ऐसा बात नहीं है कि after independence this has happened. No, ये colonial times, even in ancient times, you know, ancient times की बात करें, ancient history की बात करें, there were committees who used to look after the temples. So यहाँ पे colonial laws की अगर हम बात करें 1863 का है, 1925 का है, that were talking about कि committees होनी चाहिए थी to manage the temples. Similarly, Madras Hindu Religion Endowments कहता है कि provincial governments will oversee the administration of the temples. जो provincial governments बनते हैं in these provinces, right? तो ये manage करेंगे. So these are coming right from colonial times. And if you talk about the key judgments, right? Key judgments, this can be asked कि कौन से केस से रिलेटेड है टेम्पल्स का एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसके लिए बस हम कुछ जजमेंट्स देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रेगुलेट किया है. सो हियर वी हैव द शिरूर मठ केस, ये 1954 का केस है. एंड इन दिस द सुप्रीम कोर्ट सेज कि हमारा जो आर्टिकल 26 है, विच इज क्लॉज डी, this guarantees the right to manage religious property. So यहाँ पे even though we cannot transfer the authority of the temples to another authority, because ये जो आर्टिकल है ये वायलेट करता है कौन सा आर्टिकल, हमारा एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जहाँ पे we have the right to manage our own religious property. But यहाँ पे ये भी कहा है, however ये जो स्टेट है दे कैन रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे पूरा कंट्रोल नहीं होगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दैट द स्टेट कैन डू. सो दिस इज गिवन बाय द शिरूर मठ केस. अगेन इन 1954 और एक केस था रतिलाल पनाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. ये भी कहता है कि जो मैनेज करने का काम है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये फंडामेंटल राइट जरूर है, but state can regulate the trust properties. So here it is saying कि state governments or the government can look after these look after the administration of these institutions. So these are the two major judgments. Apart from that 1996 का ये judgment था, that is Pannalal Bansilal Pitti versus state of Andhra Pradesh. So just names of these you can just have a quick read through, पूछ सकते हैं किससे related है, right? Now इन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इट हैज अपहेल्ड जो एक लॉ था. Now the law was mainly for regarding abolishing hereditary rights, यानी कि अगर the father was looking after the temple, उनका बेटा will look after the temple. So ये hereditary rights was followed. Okay, so this was abolished.
तो यहाँ पे इट हैज अपहेल्ड कि हमको हेरिडिटरी राइट्स नहीं होनी चाहिए इन द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पे इट ऑल्सो रिजेक्टेड दैट लॉज विल अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स। अगेन ये जो राइट्स है ये सभी रिलीजन्स में लागू नहीं होते हैं, दिस इज स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू द हिंदू टेम्पल्स दैट वी टॉकिंग अबाउट। तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू नाउ द केस इज दैट we should not have, there are some groups that are saying कि government का control नहीं होना चाहिए on the Hindu, on the religious temples। जैसे we have the विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने कैंपेन चलाया है that is should not that is the government should not have control over these institutions। तो ये पूरा आर्टिकल हमने important judgments के थ्रू अच्छे से समझा। So that is all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to watch the 20 questions because we are going to be discussing very important questions from today's newspaper. Thank you.